I'm so Am I audible? Okay. Yes, ma'am. So today we will discuss the numerical part of half transform. So this should finish the half transform, and then if you people want to take more classes, then we can start new topics. Otherwise, this will finish the half transform topic. So, okay. So we were discussing half transforms, and I was telling you about edge detection. So edge detection means we were talking about generating edges using high pass filters. So once you have the edges, then you want to find out maybe certain shapes. So generally what is done is that we have automated algorithms developed for lines and circles and ellipses. And these are all implemented in OpenCV and all the standard libraries. So for lines we were discussing, and I was telling you about fitting the half transform for a line. So this everybody remembers? So this was the presentation. I'll just open my presentation also. Sumit, my class is on. Amit. So we were looking at two dimensions here, the x and y space, and then we had another space of m and c. If we are looking at equations, y is equal to mx plus c. So I had told you that one point in one dimension space is equivalent to a line in the other dimension space. So अगर हम देखते हैं y1 is equal to m x1 c plus c, तो x1 y1 point we are trying to represent is in y is equal to mx plus c. अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखें कि c is equal to minus m x1 plus y1, then this becomes a line because this is an equation of line with c and m over here instead of x and y. So you can see that for one particular point, you have an entire line here. Similarly, if I have a point here in this dimension, it becomes a line here. ये सबको समझ में आ गया था? Hence, the point in xy plane maps to a line in MC plane. This is what we were discussing. And then we were trying to find out for all the points, we were trying to find out all the lines, and we see that they intersect at one point.
So this single point we try to find out कि कितने सारे intersections हैं. So suppose I try to plot these 2 points. So there will be lines xij, xj, yj. So एक इसके लिए एक line होगी. So this is the green line is for this point. Then we have an orange line for this point. And where will they intersect? They will intersect at a point which will pass through this. Because one point becomes a line in this space. ये concept सबको clear था? Anybody? Right. Yes, So ma'am. this was the concept. Now we are trying to find out. So देखो, अगर if we have 5 collinear points, then all these 5 lines which we draw will intersect at this single point, which is actually this particular line. So हम लोग क्या करते हैं? We have an accumulator. We try and put in as many values as possible जितनी हम लोग की lines pass कर रही हैं. जहां पे भी हमें maximum m और c का value दिखता है, we know that okay 5 points will pass through this line. अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 4 होगा तो 4 points will pass through this particular line with values of m and c given to us. जब हम values m and c replace करेंगे तो जो line y is equal to mx plus c होगी उसमें 4 points lie करेंगे. Is this clear? So Yes, ma'am. ठीक है. Now the problem with m and c y is equal to mx plus c was that we have range of minus infinity to plus infinity for both m and c practically. तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है जब हम accumulator डिजाइन करते हैं. So we really do not know कि how to implement it because we don't have a minimum and a maximum range, and then we can just keep going on. So that is why the idea is to be able to constrain the value. So we take the Euler representation. Euler representation में we take rho is equal to x cos theta plus y sin theta. Here what happens is because theta is there, we have a range which is defined for theta. So theta we can go from minus 90 to plus 90. Depend करेगा, it can go to 0 to 180 जैसे हम लेंगे values, but theta will be defined. So I have a range defined, and similarly for rho also, my maximum rho will be this distance. So it will be m square plus n square ka root when this is a m cross n image. So since these parameters are defined, now I can have an accumulator which can easily be defined in theta and rho forms. So theta mean, theta max, theta mean will be 0, and theta minimum here will be minus 90, here plus 90. So here my this matrix has a particular value, and that is why this implementation is easier. So now let's try and see the numerical part of it. So suppose I have values here. Let's take these 5 points. So these 5 points are given to me. 1 0 1 1 2 1 4 1 3 2. अगर हम इनको plot करेंगे, so in your problems, whenever it is given to you in your exams, what will you do? You will first plot these points given to you, right? So your first step will be to be able to plot this. So you plot this. अब इधर हम लोग को तो दिख रहा है that this line is passing through these 3 points. और एक line इधर भी pass करते दिख रही है, right? But to be able to solve this numerically, how will we approach? So you have an image space defined. Now we will try and make the, इसको MNC बोलो या KD बोलो, जो भी है, it really doesn't matter. So we can take y is equal to mx plus c. And I will say c is equal to minus mx plus y. हमारा y is equal to mx plus c जब हम करते हैं तो y इधर होता है, तो c will be here and x इधर होता है, तो हमारा m will be here. Now m and c में when we try and plot, so let's put 1 0. So I know y is equal to mx plus c. M is x is 1. So I'll say m into 1 plus c, और ये 0. So m is equal to minus c is the line. Is it okay? सबको दिख रहा है ये? ये थोड़ा सा इन्होंने convention दूसरा लिया है. I've picked out a presentation from some other place. But I hope it is clear. So when you plot m is equal to minus c line, m is equal to minus c, you will take a graph available होगा सबके लिए. So graph papers will be available in your test. So you will plot m and c.
So how do you plot a line? सबको याद होगा M and C. You will take just maybe some values. So for 0 it is 0. For it is 1 it is -1. इस तरह से कोई भी value. So 0 0 and M is ये एक point हमने plot कर. ओके इट्स लॉस्ट, कोई बात नहीं. M is equal to -C सबको समझ में आ रहा था. एंड हियर यू विल प्लॉट. तो M is equal to -C ये वाली लाइन होगी आई थिंक. So you can see here ये वाली line. This will be M is equal to -C. Is it okay? Yes, ma'am. Right? Then when I say next point is 1 1. So y is equal to mx plus c. Put 1 1 value. So 1 is equal to m plus c. So m is equal to -c plus 1. So you can simply replace m ये हो गया, c ये हो गया. M is equal to -c plus 1. M is equal to -2c plus 1. M is equal to -4c plus 1. M is equal to -3c plus 2. ये values आ जाएंगी for all the 5 lines that I have for the 5 points. I will plot all these 5 lines. So जैसे ये M is equal to -c है, एक plus shift 1 करेंगे तो ये वाला हो जाएगा. I think this would be M is equal to -c plus 1 हो जाएगा ये वाला. Yes, इस तरह से सारे points plot कर लोगे. Can you plot these lines, all of you? Is there any problem? I don't think ये तो बहुत ही elementary है. It's a class 6th 7th maths, I think. So is there any problem for anybody? No, ma'am. So once you plot, you will see these 3 lines are intersecting at this point and these 3 lines are intersecting at this point. Correct or not? तो हमें क्या मिल रहा है? We are getting this point value. On the graph, you'll get to know this point. This point would be 0, 1. It appears. Yes or no? Yes, ma'am. हाँ. और दूसरी वाली लाइन का ये I think 1, 1 लग रहा है ना? 1, 1 है. 1, -1, right? I think this is the value. बाकी ग्राफ पेपर में क्लियर हो जाएगा. When you plot, you will see the intersecting points. So what will be the lines for this? Now you will substitute y is equal to mx plus c में. You will substitute these values. So you will get 0 and this. So अब देखो. हाँ, values यही है. 0, 1 and now if I substitute 0, 1, then I'll get a line y is equal to 1. इसमें क्या रखा हमने? y is equal to mx plus c में रखोगे. m is 0 and c is equal to 1. So y is equal to 1 हो गया कि नहीं हो गया? When I put this point. Yes, ma'am. Similarly, I have y is equal to mx plus c. M is equal to 1. ये फिर अटक गया है. Don't know what's the problem. हाँ. So here I have m is equal to 1, c is equal to -1. So when I substitute, I'll have mx -1. ये value आ गई. So I will know that these are the lines. So देखो y is equal to 1. Actually ये 3 point आ गए and ये आ गया. So you will get the solution. Is it okay? So will you be able to solve problems now? All of you, if you have any problem, please ask, because such numericals are going to be in your exam.
मैम इसमें बस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो निकाल के उनसे जो लाइन पास थ्रू हो रही है वो निकालनी है. So you will say that for these 3 points, जो 3 points देखो, जो 3 lines intersect कर रही थी, right? ये तीनों लाइन एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही थी कि नहीं कर रही थी? यस मैम. So you will know that these 3 points जैसे ये है, ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. सो 1 1 वाला ये हो गई लाइन, 2 1 वाली दूसरी होगी, 3 1. सो यू विल राइट ऑल दी लाइंस. अभी एक्चुअली जो है इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट ऑल द लाइंस यू विल रिप्रेजेंट. जैसे मैं इधर लिखा है m इज इक्वल टू माइनस सी, एंड इधर पॉइंट भी लिख दोगे 1,0, इधर लिख दोगे 1,1. सो यू विल नो विच पॉइंट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय विच लाइंस. यस मैम. So then you know that these 3 points will lie. So these 3 points will lie on y is equal to 1 line. ये वाला point. Because this point will represent this particular line. This point is representing y is equal to 1 line. So these 3 points will represent, this point will represent this, and these 3 lines which are passing, so they will pass through this. So 1 1 2 1 4 1 will pass through this point. ये हम लोग को बड़ा क्लियर हो रहा है इससे? यस मैम. Similarly, ये 3 lines are passing through this one. सबकी lines का हमें equation पता है. So I will be able to say that these 3 lines 1 0 2 1 3 2 will be passing through y is equal to x minus 1. So this line will pass through all these 3 points. So इस तरह से कुछ भी जो भी होंगे, अगर 3-4 लाइंस बन रही हैं, अगर 2 ही पॉइंट है तो यू नो दैट 2 पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू. जैसे 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, सो यू नो दैट ओके, एक लाइन है जो ऐसी जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, राइट? So अभी जरूरी नहीं है, और अभी हमने थ्रेशोल्डिंग नहीं करी है. 3 पॉइंट्स आ रहे हैं एक पे. हो सकता है व्हेन आई गिव यू मल्टीपल पॉइंट्स, यू नो, आई कुड हैव पॉइंट्स मोर लाइक दिस. आई कुड हैव So I could have given points over here. कहीं पे भी हो सकते थे points. हो सकता है इधर भी एक point होता. तो एक और line यहाँ से I would have been able to get. Right? अभी तो एक line यहाँ से भी pass कर रही होगी. देखो 2 lines यहाँ पे ये point intersect कर रहा है. यस मैम. ऐसे ये वाला point intersect कर रहा है. तो हर 2 lines के बीच में एक point तो निकलेगा ही. अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये वाली लाइन पास कर रही है इनके बीच सिर्फ, है ना? तो इसलिए ऐसा है कि कई सारे हर पॉइंट इन ये वाला और ये वाला करेंगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी. तो 2 वाले भी थ्रेशोल्डिंग होगी, बट हम लोग अभी हमने बोल दिया कि 3 पॉइंट्स मिनिमम आपको निकालने हैं. देन यू विल लुक एट 3 पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग. वरना तो ऐसी लाइंस बहुत सारी बनेगी, है ना? याली भी दिख रही है, सबको दिख रही यस है. मैम. यस मैम. over here, so you will have a intersection here. You will have 2 points का intersection कई जगह होगा. यहाँ पे होगा एक लाइन, 2 का और एक और कहीं होना चाहिए, दिख नहीं रहा है मेरे को. ये वाला, ये भी होगा, है ना? तो इस तरह से 2 पॉइंट्स के भी intersections होंगे. So these 2 are there, but then the threshold is for 3 points. So that is why we took minimum 3 points intersecting. तो हमने ये वाले blue points mark कर लिए. So that will be specified in the problem that take the threshold as 2. तो threshold में 2 में 3 भी आएगा, 2 भी आएगा. Anything greater than or equal to 2 will be considered as a line. Is it okay? ओके मैम. ठीक है. तो ये जो है इस तरह से प्रॉब्लम ये करनी होगी. अक्यूमुलेटर में कैसे करते हैं? सो यू विल नो दैट अक्यूमुलेटर में देखो एक एक पॉइंट के आ रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए. So this is, you know, you keep doing it and you will ultimately for all this कहीं पे 3 points आ जाएंगे, तो वो 3 point का threshold में हम वो वाला MNC की value ले लेंगे as the line of the equation of the line. Understood? Is it okay? Everybody is fine? Yes ma'am. Okay बेटा. So अब इसमें देखते हैं कि what about the other representation? So suppose I want to solve with this representation, r is equal to x cos theta plus y sin theta. इसको rho लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, whatever. So they have taken a r theta representation. Here again these points are given to you. So some random 6 points are given to you.
नाउ यू विल, अब थीटा क्या है, हम लोग वेरी तो -90 से +90 कर सकते हैं, बट द कैलकुलेशंस बिकम वेरी इंटेंसिव. So for all our practical purposes, if it is specified in the numerical that use normal form of line, then you will use this representation, Euler form, normal form. Tab you will use this representation. Do not use y is equal to mx plus c for solving. जो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है वही फॉर्म से सॉल्व करना होगा. You will not get marks if you solve in the other dimension. Is it okay? जिस रिप्रेजेंटेशन में बोला है उसी में सॉल्व करना. So if normal form is given or Euler form is given, you will use this representation. अब इसके लिए क्या करेंगे, थीटा वी विल डिवाइड इनटू सर्टेन वैल्यूज, और बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करने का कोई फायदा नहीं है. हम लोग जनरली, बिकॉज अभी जब आप लोग को सिखाया जाता है, सो यू नो दीज वैल्यूज, यू नो कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये सब वैल्यूज हम लोग जनरली किसके लिए करते हैं? Whenever we draw the table, we are given values from, we generally start from 0, then 30 degrees, then 45 degrees, then 60 degrees, then 90 degrees. ये वाले पे वैल्यूज पे हम लोग देखते हैं कि नहीं? साइन थीटा 9 सबने करा हुआ होगा, आई थिंक बहुत छोटी क्लास 8th 5th में कराया जाता है. साइन थीटा, कॉस थीटा, सो यू स्टार्ट विद 0. ये क्या होता था? हाफ 1/√2, √3/2, 1, और इसी का ऑपोजिट हो जाता था शायद, आई थिंक यही होता था, मेरे को याद नहीं बाकी. सो इस तरह से होता है. सो हियर वी आर टेकिंग, एंड यू नो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. ये तो सबको पता है. तो अभी इन्होंने क्या वैल्यूज लिए हैं? दे हैव टेकन 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, -45, 0, 45, 90. सो दीज शुड बी इनफ. तो हम लोग ने कोई भी 4 पॉइंट, क्योंकि कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए हम लोग जनरली 2-3 वैल्यूज लेते हैं. ऐसे अगर ये क्या होगा, व्हाट विल दिस रिप्रेजेंट? दिस विल बी एक्चुअली अ वेव फॉर्म. इस तरह की वेव टाइप की आएगी कोई. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम 4 पॉइंट बना लेंगे कोई भी, तो हम 4 पॉइंट प्लॉट करने से आई विल बी एबल टू गेट अ वेव फॉर्म. सो वी विल टेक दीज वैल्यूज. नाउ व्हाट यू डू, एक्स वाई की वैल्यू हमने रखी. अब आई नो द वैल्यूज, देखो इधर दिख रहा है 1 1. व्हाट इज द वैल्यू हियर? 2 1, 1,3, 2,3. अब ये पॉजिटिव एक्स और वाई लिया हुआ है, देखो ये ध्यान रखो. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. देन दिस इज 3,4, 4,3. तो ये सब वैल्यूज इन्होंने ले ली. इज इट ओके? 2 0, ये सारी वैल्यू समझ में आ रही है? All these coordinates are for these 6 points given to you in the diagram. Now what will you do? You will start putting theta values. So -45, 0, 45, 90. So अब जब values लिखेंगे, x की value रखी 2. So let's calculate one of them. For x, y is equal to 2, 0. I know x is equal to 2. y is equal to 0. अब वैल्यू रखो. r is equal to x है 2 cos of -45 degrees plus y है 0 sin of -45 degrees. So 2 cos -45 degrees, cos of 45 degrees 1/√2. So 2/√2. 2/√2. This is √2 actually. This is 1.414 होता है. सबको पता है ना? ये तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है. Any problem? I had told you cos of minus theta is cos of theta. Is it clear or not? Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला क्लियर है. अब ऐसे you will put 0. तो 0 में cos of 0 जब लिखोगे तो 1 आ जाएगा. तो 1 आ जाएगा तो 2 into 1, and sin of 0 is 0. तो इसलिए 2 into 1 2 आ जाएगी वैल्यू. Is it correct? Then cos of 45 degrees, sin of 45 degrees, और वैल्यूज है 2, 0, तो y तो 0 हो जा रहा है.
अगेन ये √2 आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा, और ये 0 हो ही जाएगा, दिख ही रहा है, cos ऑफ 90 इज 0, और y का ये वैल्यू 0 ही है, एक्चुअली ये तो 0 ही हो चुका है टर्म पूरा, और इसमें इससे इवैल्यूएट कर रहे हैं तो cos ऑफ 90 इज 0, तो ये 0 आ गया. Is it fine? So for all points you Yes, will ma'am. find all these corresponding values. अब क्या करो, अक्यूमुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे. हम लोग रेंज कहां से कर रहे हैं, अब इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट वी हैव? -1/4. This is the Yes, ma'am. minimum. And what is the maximum value? 4.9. और कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है, तो हमने इसी की टेबल बना ली, जितनी पॉसिबल वैल्यूज है सब लिख दी. -1/4, फिर उससे बड़ा आया -0.7, फिर आया 0, फिर 0.7, फिर 1 आ गया, फिर 1.4 आ गया. ये सारी वैल्यूज इधर लिख दी हम लोग ने, जितनी पॉसिबल आउटपुट्स आ रहे थे. इसी टेबल से ये सारे आउटपुट्स आए. Yes, ma'am. All possible outputs are here, and all possible outputs of this are here. -45, 0, 45, 9. अब हम लोग क्या करेंगे, वही फ्रीक्वेंसी टेबल टाइप का हो गया. वी विल स्टार्ट द अक्यूमुलेटर प्रोसेस. फ्रीक्वेंसी टेबल है, -1.4 यहाँ पे इन दोनों का एक अकरेंस है. -1.4 ये एक बार आया, फिर -0.7, -0.7 इधर भी आया, इधर भी आया है -45 में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई. फिर इस वाली वैल्यू पे आओ, 0 डिग्रीज. 0 डिग्रीज में इधर आ जाओ, यू विल सी 2, 1, 2, 3 बार अकर कर रहा है. कैन यू सी? 0 में 1, 2, 3 बार अकर करा है, तो इधर हमने 3 लिख दिया 0 एंड 2 में. फिर हमने 0, क्रैप, फिर 0 में हम लोग आए 0 एंड 2 कर रहे थे. फिर 0 एंड 1 में 1, 2, 2 अकरेंसेस. 0 एंड 1, 0 और 1 में 2 अकरेंसेस, 1 एंड 2. फिर 0 एंड 3 में ओनली 1 अकरेंस, तो ये 1 अकरेंस आ गई. फिर 0 एंड एक और क्या है, 4 वैल्यू आ रही है, तो 4 में 1 आ गई. देन यू टेक 45, 1, 2, 2 टाइम्स 1.4, 1 टाइम 2.1, 2.8 एक बार, 3.5 एक बार, और ये 4.9 दो बार. फिर 90 डिग्रीज पे आओ, 2 बार 1, 3 बार 3, 4 एक बार, एक ही बार तो है 4, 2 बार कहाँ रहा है, ये कुछ गलत है ना, ये एक ही बार है, 1 एंड 1 टाइम 0. कैन यू सी दिस? ये सबको समझ में आ गया बेटा, आर एन थीटा कैसे बनाना है? ओके, सो नाउ यू विल सी. अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो कौन से, अगर हमने थ्रेशोल्ड 3 रखा है, तो यू विल से ओके ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, तो यू विल से दैट ओके, अब r इज इक्वल टू, ये हमारा थीटा था, r इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू 0 पे 3 लाइन्स हैं, 3 पॉइंट्स, और r इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पे 3 पॉइंट्स है. कैन एवरीबडी सी दिस? अब इसको सब्स्टिट्यूट कर Yes, दो. ma'am. सो r इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा. अब हमने सब्स्टिट्यूट करा, आई से r इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू x cos 0 प्लस y sin 0.
ये तो 0 हो गया, cos of 0 is 1, so x is equal to 2 is one line. ये इक्वेशन समझ में आ गई? एंड यू विल सी x is equal to 2 जब ये है ये वाली लाइन, तो यू विल हैव 3 पॉइंट्स हियर. देखो ये वाले 3 पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअली पास भी कर रहे 3 पॉइंट्स, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द अदर वैल्यू. अब हमारे पास है r is equal to 3, so we'll say 3 is equal to x cos 90 degrees plus y sin 90 degrees. I know x cos 90 is 0 because cos of 90 is 0. Y sin 91 हो गया, तो y is equal to 3 is another line. और 3 points should pass through it. Y is equal to 3, ये वाली लाइन हो गई. और ये 3 points पास भी कर रहे हैं. आ गए कि नहीं आ गए? यस मैम. यस मैम. So इस तरह से you will start getting values and you can substitute and find them out. Is it okay? सबको clear हो गया? Any problems? So you should be able to solve equations like this. अब देखो एक हमने अगर मिस करा, ये वाला मिस हो गया है, मेरे को दिख रहा है, अभी मैंने सॉल्व करते करते देखा ये वाली लाइन नहीं, अच्छा इससे नहीं पास करेगी, ठीक है, मेरे को लगा था ये ऐसी कुछ नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर एक और पॉइंट यहाँ होता, we would have got another yet another line, तो 3 कहीं आने लगता, राइट? 3 थ्रेशोल्ड ये वाली लाइन से, तो वो डिपेंडिंग अपने आप जो है आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग. यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द लाइंस व्हिच आर पासिंग. एंड प्लीज लुक एट द फॉर्म ऑफ द लाइन. नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन वुड मीन दिस, एंड नॉर्मल फॉर्म जो y इक्वल टू mx प्लस c, वैसे भी मैं लिख दूंगी प्रॉब्लम में, दोनों स्पेसिफाई कर देंगे. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व. इज देयर एनी प्रॉब्लम? बेटा किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बिकॉज दिस इज यू नो इट फिनिशेस योर हाफ ट्रांसफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस शुड बी इनफ टू कवर योर न्यूमेरिकल्स इन द हाफ ट्रांसफॉर्म व्हिच विल बी आस्क्ड. थ्योरी पार्ट क्लियर है? अच्छा, आगे कंटिन्यू करना है कुछ क्लासेस का, बिकॉज यू पीपल हैव टाइम. तो नहीं ऐसा है, यहाँ पे नहीं, मेरे को बिकॉज मेरे को पता है यहाँ पे सिर्फ तुम ही एक्टिव हो और कोई एक्टिव नहीं बोलता नहीं है. आपस में डिस्कस कर लो. इफ यू वांट आई कैन कीप टीचिंग, बिकॉज अभी मैंने फूरियर भी नहीं कवर करा है, बहुत सारी चीजें हैं, कलर ट्रांसफॉर्म्स भी हैं जो कवर हो सकते हैं. सो लॉट्स ऑफ मटेरियल इज देयर, यू नो, आई हैव एंडलेस मटेरियल एज फार एज इमेज प्रोसेसिंग गोज. सो वो स्लाइड्स देखी हैं तुम लोग ने कई बार. सो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कवर हो सकती हैं. हाँ बेटा बोलो. मैम मॉर्फोलॉजिकल की मैम जुपिटर नोटबुक. हाँ वो मैं शेयर कर दूंगी, वो क्लासरूम में, हाँ क्लासरूम में शेयर कर दूंगी. बाकी ये देखो इसमें फीचर डिटेक्शन का, और मैम इट विल बी रियल. और यस मैम. क्या बेटा? मैम लास्ट इसकी मैम रिकॉर्डिंग भी मैम पैरेलल में अगर अपलोड हो जाती तो लोग मैम कर लेते. लास्ट क्लास तो मैंने क्या है खुद जनरेट करा था, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा था. ये लोग जब आज तो शायद रिकॉर्ड कर रहे होंगे बिकॉज प्रमोद इज देयर. आई डिडंट रिकॉर्ड लास्ट क्लास आई थिंक. ओके, सो आई डोंट हैव द रिकॉर्डिंग. मैम करा था तो करा होगा तो फिर इन लोग ने रिकॉर्ड करा होगा, तो इनके शेयर, प्रमोद शेयर कर देना रिकॉर्डिंग. प्रमोद या गौरव सर से बोल देना, यही लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है? तो ये लोग शेयर कर देंगे, मेरे पास नहीं होती बेटा रिकॉर्डिंग. और बाकी बता देना, तो तुम लोग को कंटिन्यू करना है तो आई हैव एंडलेस मटेरियल, आई कैन कीप कंटिन्यूइंग. एंड अदरवाइज इफ यू वांट टू स्टॉप हियर वी कैन स्टॉप हियर एंड आई विल मेक द पेपर अकॉर्डिंग टू दिस. ओके ओके मैम. ठीक है. और बाकी अगर कुछ डाउट्स हैं सो यू कैन लेट मी नो, आई कैन क्लियर डाउट्स आल्सो इन अ सेशन. जो भी है तो आपस में डिस्कस करके बेटा ग्रुप पे बता देना, बिकॉज तुम लोग को यू कीप प्राइवेट मैसेजिंग में. सो इट इज बेटर, एक ग्रुप इसीलिए बनाया है ताकि सब लोग इसमें इंटरेक्ट कर लो. कोई उसमें पता नहीं किस बात की शर्म आती है तुम लोग को,
तो आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आप आराम से उस पर कम्युनिकेट करो, बिकॉज इंडिविजुअली टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी. So it's always better there's a group so that everybody also benefits, you know. So if there's a problem you want to ask, put it on the group. If you have a decision, अगर कुछ doubts है, आगे continue करना है, जो भी है group पे upload कर देना. ठीक है? So this I'll end the class here because this will finish this. और lab में, हाँ बेटा. मैम बीटीपी में कैसे क्या होगा, मतलब सिनॉप्सिस के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे या फिर प्रोजेक्ट के बेस पे? तुम लोग ने बनाया ही क्या है? सिनॉप्सिस ही तो बनाई है अभी तक शायद. यस मैम. हाँ, तो फिर कैसे प्रोजेक्ट ले लेंगे? आई डोंट नो भाई, जिसने जितना काम करा होगा उसी हिसाब से लेंगे. वी वुड प्रेफर कि कुछ काम हो जाए, प्रेफर तो यही करेंगे, और बाकी नहीं बनाया होगा तो पास भी करेंगे. क्या कर सकते हैं, अभी तो तुम लोग के पास कोरोना का एडवांटेज है, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते. मैम डेट क्या है सबमिट करने का? You will have your presentations and your labs completely during your end semester exams. तो तुम लोग के end semester exams है 21st से हैं. यस मैम. मैम अभी 5th और 7th को कोई प्रेजेंटेशन नहीं है ना? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग के लिए तो एग्जाम्स चालू ही हो रहे हैं बेटा. सो हमारे लिए तो चाहे सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, हमारे लिए तो एग्जाम स्टार्ट हो गए, मतलब स्टार्ट हो गए. यस मैम. तो फैकल्टी विल नॉट बी फ्री. अगर हो पाता है कुछ बीच में कॉमन तो हम लोग ऑनलाइन हो सकते हैं, बट हम लोग प्रेफर यही करेंगे कि 21st से 26 में यू पीपल विल बी कमिंग एंड सिर्फ 3 आवर्स का एग्जाम होगा, रेस्ट ऑफ द डे इज गोइंग टू बी फ्री. यस मैम. You can schedule your exams, your presentations during that time also. अभी medical faculty will let you know. ओके मैम. थैंक यू मैम. Yeah. Anything else? बाकी अपना जो सिनॉप्सिस दोगे तो उसमें कम से कम जो है यू शुड हैव, मैंने हेडिंग्स शायद बता दी थी, हेडिंग्स बता दी थी ना मैंने? यस मैम. उसके हिसाब से, हेडिंग्स के हिसाब से यू विल क्रिएट योर सिनॉप्सिस. It should be minimum 20-25 pages. Do not paste your code in any of your files. Files hard copy लेके आओगे, bind करवा के लाओगे in spiral binding. ये मत बोलना कि नहीं है, पता नहीं था, पहले से इसीलिए बता दे रहे हैं. BTP का you will, जब फाइनल दोगे तो hard bound दोगे. This will be a spiral binding and it's a standard. This I had told the headings. उसके हिसाब से generally 11 point का वो font रखोगे, और जब उसके मतलब ये 20-21 का फॉन्ट मत रख लेना कि नंबर ऑफ पेजेस भर जाएं. इट विल बी ए स्टैंडर्ड 11 कैलिब्री फॉन्ट और या टाइम्स न्यू रोमन स्टैंडर्ड 11 फॉन्ट. और स्पेसिंग भी स्टैंडर्ड रहेगी, यानी कि एक एक पैरा छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं जबरदस्ती की. नो कोड विल बी अटैच्ड, और बहुत बड़ी इमेजेस नहीं होंगी. थोड़ा सा IEEE के फॉर्मेट होते हैं, कोई भी एक लैटेक्स फाइल या फिर प्रमोद सर से या गौरव सर से स्टैंडर्ड फाइल का एक फॉर्मेट ले लेना, वो हम लोग का बना हुआ है, उसी से अपना प्रेजेंटेशन वो बनाना सिनॉप्सिस. बाइंड इट. एक फाइल इज नीडेड फॉर एन एंटायर ग्रुप. सबको अलग अलग फाइल देने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन शेयर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फाइल अमंगस्ट योरसेल्फ इन द ग्रुप. एक फाइल दोगे, सबका नाम लिखा होगा उस पे. और बाकी जो प्रेजेंटेशन होगा इट शुड बी एटलीस्ट 10 स्लाइड्स, बस 10 से 12 स्लाइड्स से ज्यादा का प्रेजेंटेशन नहीं होगा. इट विल बी मोर ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग. इफ यू हैव अ रिसर्च काइंड ऑफ एन टॉपिक जिसपे कुछ पेपर्स हैं, तो उनका हार्ड कॉपी कैरी करना प्रेजेंटेशन के टाइम पे, और उनको सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल रखना. किसी ने कुछ डेवलप कर लिया है तो ट्राई ये करना कि उसका एग्जीक्यूशन लोकल मशीन पे दिखा पाओ. जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो सब कुछ, कोई जरूरत नहीं है. अपलोड हुए लोकल होस्ट पे चला के दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज नॉट योर फाइनल प्रेजेंटेशन, सो इट नीड नॉट बी लाइव. अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट लिया है तो यू विल शो कि उसको लाइव करने की कोशिश करना कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिस्टिंग्स करी हैं, कहाँ सोशल हैंडल्स बने हैं, क्या करा है उसने, क्या एग्जैक्टली आपने काम करा है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. फिर वी कैन चेक द लिस्टिंग में कितनी रैंकिंग आ रही है, because it needs constant work. So see, according to the type of project that you have, some may require a lot of labor, some are labor intensive, some are more of research based, जिसमें reading ज्यादा involved है. So as per your forte, जिसका जैसा interest है, जैसा caliber है, उस तरह का project ले लो. Evaluation सबका same parameters पे होगा. अगर आपका project इस तरह का है जिसमें आपको काम ज्यादा करना है,
तो आपके पेजेस दिखने चाहिए। वेबसाइट वगैरह में अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, योर लिस्टिंग का रैंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. So we will look at that. If you have a research-based project where you're trying to do something which is different from others, or maybe trying to replicate a project or a research paper, there your amount of knowledge of the domain is more important. Is it clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. मैम डिजिटल मार्केटिंग 2-2 पेज की वेबसाइट बना के मत लाना जिसमें कोई कूड़ा टाइप का कंटेंट हो, मतलब वो मूड खराब हो जाता है देख के. सो अभी भी बहुत टाइम है. यू पीपल हैव इनफ टाइम. यू हैव 10 days मोर टू गो. इनफैक्ट 10 से ज्यादा है. अभी तो आज 2 ही तारीख है और 21 से है, तो 15-20 दिन में अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन जाता है. वो उस हिसाब से अपना टाइम रख लो और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल ग्रेडिंग होगा. सो इट इज लाइक ये नहीं है कि पीछे लैग करके मैं तो प्रोजेक्ट बनाया, मैंने रिपोर्ट बनाई, इस तरह का मेरे को काम नहीं चाहिए. किसी से पूछा आपने क्या करा, वो कहता है कि मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, 0. योर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट. एवरीबडी शुड नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. इट इज नॉट लाइक कि अगर आपने डिवाइड भी कर लिया तो दूसरे का काम आपको पता ही नहीं है, और अपना काम तो पूरा कोड के साथ पता होना चाहिए. Is it okay? Okay, ma'am. और कोई डाउट है किसी को? मैम व्हाट इज लिस्टिंग मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत सारी फ्री लिस्टिंग्स होती है, क्या होता है कि आपको बैकलिंक्स देने होते हैं. डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक्स, आउटगोइंग लिंक्स और बैकलिंक्स आपकी साइट पे कितने आ रही हैं. तो जितने आपके लिंक्स होंगे उतना आपका हाई रैंकिंग हो जाती है गूगल की. तो आपकी वेबसाइट्स जो बाकी सब हैं, बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जिसमें आप लिस्टिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट की. तो क्या होता है, बैकलिंक्स उससे बन जाते हैं, तो आपकी रैंकिंग ऊपर आ जाती है. ओके मैम. ओके, उसके लिए देखोगे तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल है जहाँ पे आप फ्री लिस्टिंग कर सकते हो. यस और मैम. वो मैंने शायद तुम ही लोग के बैच में प्रोजेक्ट कोई कर रहा था तो मैंने लिस्टिंग पूरी शेयर करी थी, ले लेना किसी से. बहुत 2-5-6 पेज की है, वरना मैं मेल कर दूंगी. तो वो बहुत सारी लिस्टिंग का वेबसाइट्स हैं, तो उसमें आराम से लिस्ट कर सकते हो. थैंक यू. एनी अदर डाउट्स एनीबॉडी? मैम हाँ बोलो बेटा. कर लिया. I can't hear you, Anamika. Your voice is breaking. अनामिका बेटा टाइप कर दो. I can't hear you. मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. Anybody else has any problem? हाँ, half part of my project. तो बेटा ठीक है ना, this is a 2 semester project. So if you've completed half, that's okay. No problem. No, you can't add the code part. Code part just wastes pages. उसकी जरूरत नहीं. कोड आप तैयार रखना, हम लोग देख लेंगे. But code is not to be attached in your file. Right. Any other doubts? Anybody? So I'll just end the meeting here.